Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDA practice series. So first pause this video, try this at yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now this is a very long set, a lengthy looking set, a little difficult, and this is also one of the classic sets of CAT. This is from the old papers of CAT, right, 2005 around. Now let's read this set. So this says the year is 2089. Beijing, London, New York, and Paris are in contention to host the 2096 Olympics. The eventual winner is determined through several rounds of voting by members of the IOC, with each member representing a different city. Right? So IOC basically उसके members voting कर रहे हैं with each member representing a different city. तो जितने भी आपके members हैं वो सब एक distinct city को represent कर रहे हैं. ऑल द 4 cities इन कंटेंशन आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन द IOC. इसका मतलब क्या है, IOC में बहुत सारे मेंबर्स हैं, राइट, बहुत सारे सिटीज़ हैं जो उसका पार्ट है, उस मेंबर्स है उसके. बट ये जो स्पेसिफिकली सिटीज़ मेंशन्ड है, दैट इज बीजिंग, लंडन, न्यूयॉर्क एंड पेरिस, दीज आर द 4 cities विच आर इन कंटेंशन. इसका मतलब क्या हुआ, उन्हीं के लिए एक्चुअली वोटिंग होगी जो कंटेंडर है बेसिकली टू होस्ट द 2096 ओलंपिक, राइट. सो दैट इज वॉट इज मेंट बाय द फर्स्ट पैराग्राफ. नाउ there are 3 points, right? The first point, in any round of voting, the city receiving the lowest number of votes in that round gets eliminated. Now first round में automatically we know कि हमारे पास 4 cities हैं. ये बोलता है in any round of voting the city receiving the least number of votes, the lowest number of votes in that round gets eliminated. तो first round में जो 4th आपकी city होगी on the basis of the number of votes, वो city क्या हो जाएगी, eliminate हो जाएगी. Now the survivor after the last round of voting gets to host the event. Now तो इसी तरीके से डिसाइड होने वाला है कि which city is actually going to host the event. तो 3 राउंड्स में होगा बिकॉज 4 सिटी से स्टार्ट हुआ, 4 सिटी से स्टार्ट होगा. फर्स्ट राउंड में 1 सिटी एलिमिनेट होगी, देन सेकेंड राउंड में आपकी 3 सिटीज़ में से 1 सिटी एलिमिनेट होगी, और फाइनली फाइनल राउंड जो थर्ड राउंड होगा उसमें से 2 में से 1 एलिमिनेट हो जाएगी एंड विल बी लेफ्ट विद 1 सिटी एंड दैट सिटी विल गेट टू होस्ट द 2096 ओलंपिक्स, राइट. नाउ a member is allowed to cast votes for at most 2 different cities in all rounds of voting combined. Also, a member becomes ineligible to cast a vote in a given round if both the cities she or he voted for in the earlier rounds are out of contention in that round of voting. Now, इसको बहुत आराम से समझते हैं कि क्या बोल रहा है. A member is allowed to cast vote for at most 2 different cities in all rounds of voting combined. तो जैसे कोई भी member है इस IOC का, तो किसी भी मेंबर को एटमोस्ट 2 डिफरेंट सिटीज़ के लिए वोट करना अलाउड है, राइट. 2 डिफरेंट सिटीज़ के लिए आप वोट कर सकते हो. हेंस अब इसी का एक लॉजिकल डिडक्शन आता है कि मैक्सिमम आपका 2 सिटीज़ के लिए आप वोट कर सकते हो. तो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली सेइंग हेंस अ मेंबर बिकम्स इनएलिजिबल टू कास्ट वोट. कब इनएलिजिबल हो जाएगा वो पर्सन या वो मेंबर कास्ट करने के लिए वोट, जब वो दोनों सिटीज़ जो बेसिकली जिनके लिए वो वोट कर ही रहा है वो दोनों सिटीज़ क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, बिकॉज उन्हीं दोनों के लिए वोट करा उसने, राइट. वो दोनों सिटी अगर एलिमिनेट हो जाएंगी तो फिर किसी थर्ड के लिए वोटिंग नहीं कर सकता. एंड यही दिया हुआ था कि एटमोस्ट 2 डिफरेंट सिटीज़ के लिए वोटिंग कर सकता है. सो दैट इज़ व्हाट इज मेंट बाय दिस सेकेंड स्टेटमेंट कि जब पर्टिकुलर मेंबर जिन 2 सिटीज़ के लिए वोटिंग कर रहा था, अगर वो 2 सिटीज़ एलिमिनेट हो गई देन दैट मेंबर बिकम्स इनएलिजिबल टू वोट. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इनएलिजिबिलिटी. Now, a member is also ineligible to vote, right? एक और condition है why a member is ineligible to cast a vote. He is ineligible in a round if the city she or he represents is in contention in that round of voting, right? Now this says जब वो particular city contention में होगी. For example, we know initial जो first आपका round है उसमें ये 4 cities आपका contention में है. That simply means इन 4 cities के जो representative होंगे वो वोटिंग नहीं कर सकते, राइट. वो वोटिंग नहीं कर पाएंगे. नाउ एज लॉन्ग एज अ मेंबर इज एलिजिबल ही और शी मस्ट वोट फॉर ओनली 1 कैंडिडेट सिटी इन एनी राउंड ऑफ वोटिंग. अच्छा, जो पिछला वाला स्टेटमेंट था उसका फॉलोअप ये भी निकल के आता है कि हमने ये बोल दिया कि अगर वो पर्टिकुलर मेंबर उसी सिटी से बिलोंग कर सकता है, सिटी से बिलोंग कर रहा है जो सिटी उस राउंड में कंटेंशन में है, जब वो सिटी पर्टिकुलरली एलिमिनेट हो जाएगी, राइट. जो भी जैसे फर्स्ट राउंड में आपकी कोई 4th वाली सिटी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वोट्स एलिमिनेट हो गई, तो उसका मेंबर एक्चुअली में फिर सेकेंड राउंड में वोटिंग कर सकता है, बिकॉज किसी भी पर्टिकुलर मेंबर को नंबर ऑफ कितने
आपको नंबर ऑफ सिटीज़ जिनके लिए आप वोट कर सकते हो कितने अलाउड है, मैक्सिमम 2 अलाउड है, राइट. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड. नाउ this says the following incomplete table shows the information on cities that receive the maximum and minimum votes in different rounds, the number of votes cast in their favor and the total votes that were cast in those rounds. तो round 1 to 3 में total votes cast आपको second and third का पता है, and similarly ये जो second वाला आपका block है इसमें आपका जिस भी round में maximum जो भी पा रहा है, जो भी city and उसके number of votes वो given है, एंड जो सिटी उस पर्टिकुलर राउंड में एलिमिनेट हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन गिवन है, अगेन ओनली फॉर द फर्स्ट एंड द सेकेंड राउंड. थर्ड राउंड का इन्फॉर्मेशन वी डोंट हैव. नाउ अब स्टार्ट करते हैं ज़रा इसको सॉल्व करना, बिकॉज वी हैव सम मोर कंडीशंस जिसके बेसिस पे हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर सेट को. नाउ लेट्स पुट ऑल द इंफॉर्मेशन जो अभी तक गिवन थी. तो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में आपका लंदन एंड पेरिस वर इन द फर्स्ट पोजीशन. सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इनिशियल राउंड में, उसके बाद चेंजेस होने स्टार्ट होंगे. तभी यहाँ पे हमने सेकंड राउंड में एक को ब्लॉक कर दिया है, बिकॉज यहाँ पे 3 ही सिटीज़ पहुँचेंगे. न्यूयॉर्क तो आपको पता है ना, लोएस्ट नंबर ऑफ वोट्स पाया था, एलिमिनेट हो गया. सेकंड राउंड में इट वाज मेंशन्ड कि बीजिंग के 21 वोट्स हैं, वो एलिमिनेट हो गया, राइट. सो दिस वाज गिवन इन दिस पर्टिकुलर डेटा. नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना. सबसे पहले ये मिसिंग आपका जो वैल्यू है इसको मे भी फिगर आउट करने की हम कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले आप ये समझो कि यहाँ पे 83 था, राइट, यहाँ पे 75 है. अब सबसे पहली चीज़, फर्स्ट राउंड में जो टोटल नंबर ऑफ वोट रहा होगा, राइट, नंबर ऑफ वोटर्स जो रहा होगा, या नंबर ऑफ वोट्स भी बोल सकते हो, बिकॉज इसेंशियली इट इज़ द सेम थिंग, जितने मेंबर्स होंगे उतने वोट्स होंगे. तो फर्स्ट राउंड में कितने आपके टोटल नंबर ऑफ वोट्स पड़े होंगे? आई वुड से द फर्स्ट राउंड वुड कंसिस्ट ऑफ अ टोटल ऑफ 82 वोट्स. नाउ वाई 82? देखो यार, बड़ी सिंपल सी चीज़ है. इसने कंडीशन क्या दिया हुआ था आपको कि जो भी मेंबर है, अगर उसकी पर्टिकुलर सिटी जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो उस पर्टिकुलर राउंड में कंटेंशन में है, तो वो फिर उस पर्टिकुलर राउंड में वोटिंग नहीं कर सकता. नाउ इसका ये सिंपल मतलब निकल के आता है कि अगर उसकी सिटी जिसको बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है वो एलिमिनेट हो जाए, तो इसका क्या मतलब होगा कि फिर वो नेक्स्ट राउंड में भी वोटिंग के लिए एलिजिबल है, बिकॉज उसकी सिटी तो एलिमिनेट हो गई है. देन ही और शी बिकम्स एलिजिबल टू वोट. तो फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड आने में, राइट, इनएलिजिबल तो कोई बंदा नहीं हुआ होगा, ऐसा तो कोई नहीं होगा जो इनएलिजिबल काउंट हो जाएगा, राइट. मतलब इनएलिजिबल तो आपकी 2 पॉसिबिलिटी थी, राइट. पहला कि अगर वो पर्टिकुलर पर्सन उसी में जिस राउंड में वो पार्ट ले रहा है उसकी सिटी कंटेंशन में है, तो वो इनएलिजिबल है, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. दूसरा, इनएलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है? जब एक पर्टिकुलर पर्सन जिसको दोनों सिटीज़ को वोट कर रहा है, मैक्सिमम जिसके लिए वोट कर रहा है, अगर वो दोनों सिटीज़ बाहर हो जाए, रेस से बाहर हो जाए, तो फिर वो इनएलिजिबल हो जाएगा. बट अभी तो राउंड एक ही हुआ है, राइट. सो इनएलिजिबल कोई नहीं होगा. तो जो भी एक्चुअली में एलिजिबल होंगे फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड आने में, सिर्फ आपका क्या होगा, एक पर्सन इंक्रीज हुआ होगा. वो पर्सन कौन होगा? एक्चुअली में जो आपका न्यूयॉर्क का रिप्रेजेंटेटिव रहा होगा फर्स्ट राउंड में, राइट, बिकॉज फर्स्ट राउंड के एंड में न्यूयॉर्क एलिमिनेट हो जा रही है. तो न्यूयॉर्क का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो दैट सिंगल पर्सन, नाउ ही बिकम्स एलिजिबल टू वोट इन द सेकेंड राउंड. इसीलिए सेकेंड राउंड में आपका जो फर्स्ट राउंड सा जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है वो आपका 1 से इंक्रीज होते हुए दिखना चाहिए. यहाँ से यहाँ एक्चुअली में आपका 1 का इंक्रीमेंट हुआ होगा. हेंस द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द फर्स्ट राउंड वुड बी 80. राइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस फर्स्ट पॉइंट कि ये 82 ये आपका एक्चुअली में नंबर ऑफ वोट्स इन द फर्स्ट राउंड आएगा. तो 82 में एक ऐड हो जाएगा, 83 बन जाएगा. नाउ यहाँ से अब आपको देखो ये समझ में आएगा कि इस 83 के बाद आपका यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट क्यों नहीं हुआ. ये डायरेक्टली आपका बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया है. इसका रीज़न क्या होगा? बिकॉज 83 में कंप्लीटली अग्रीड कि जो बीजिंग वाला सेकेंड राउंड में बीजिंग वाला पर्सन एलिमिनेट होगा, तो बीजिंग का एक रिप्रेजेंटेटिव थर्ड राउंड में आपका इंक्लूड होना चाहिए था. तो आइडियली यहाँ पे 83 + 1 दैट इज 84 होना चाहिए था. बट 84 की जगह यहाँ पे 75 आ गया. 84 से 75 दैट इज आपका 9 का जो डिक्रीज है, वो 9 का डिक्रीज क्यों होगा? बिकॉज 9 पीपल नाउ वुड हैव बिकम इनएलिजिबल टू वोट. एक ही यही पॉसिबिलिटी है,
वही इनएलिजिबल हो जाएंगे। इसीलिए आपका जो एक्चुअली में 84 पे वैल्यू पहुंचनी चाहिए थी 1 ऐड करके, वो 84 की जगह फाइनली 75 पे एंड हुआ, बिकॉज दिस डिफरेंस दैट इज 9 पीपल वुड हैव बिकम इनएलिजिबल टू वोट, थर्ड राउंड में वोटिंग ही नहीं कर सकते। नाउ इनएलिजिबल टू वोट कौन होगा? वो वही वोटर्स होंगे जिनके जो दोनों कंट्रीज के लिए उन्होंने वोट करा होगा, वो पर्सन, वो दोनों कंट्रीज क्या हो जाए या सिटीज क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। नाउ एलिमिनेट आपका फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कौन सी सिटीज हुई है? न्यूयॉर्क एंड बीजिंग। तो वी कैन से कि 9 पीपल वुड हैव वोटेड फॉर न्यूयॉर्क इन राउंड 1 एंड बीजिंग इन राउंड 2। ये हमारा पहला एक क्लियर इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि आउट ऑफ दिस 12 हम सिंपली ये बोल सकते हैं 9 लोग ऐसे हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क के लिए राउंड 1 में वोट करा था एंड उन्हीं 9 लोगों ने बीजिंग के लिए राउंड 2 में वोट करा होगा। इसीलिए जब दोनों ये कंट्रीज एलिमिनेट हो गई तो वो जो दोनों आपके टोटल आपके 9 लोग हैं, 9 आपके मेंबर्स थे, दे बिकेम इनएलिजिबल टू वोट, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जो अभी हमने सिंपली इन नंबर्स के थ्रू ही फिगर आउट कर लिया है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं टू रीड दिस पर्टिकुलर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वी विल बी एबल टू फिगर आउट ऑल द रिमेनिंग पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। नाउ दिस सेज all those who voted for London and Paris in round 1 continue to vote for the same cities in subsequent round as long as these cities were in contention। Now ये बहुत क्लियर बोल रहा है कि जब तक लंदन एंड पेरिस कंटेंशन में होंगे, राइट, जितने लोगों ने लंदन एंड पेरिस के लिए राउंड 1 में वोट करा होगा वो कंटिन्यू करेंगे इन दोनों सिटीज़ के लिए वोट करना, राइट। तो जैसे लंदन के लिए फर्स्ट राउंड में आपको क्लियरली पता है कि 30 लोगों ने वोट करा है, तो जब तक लंदन कंटेंशन में है, और कब तक है वो तो आपको दिखना चाहिए क्योंकि फर्स्ट और सेकंड राउंड में दोनों एलिमिनेट नहीं हुए, सिर्फ बीजिंग और न्यूयॉर्क एलिमिनेट हुआ है। दैट मीन्स थर्ड राउंड में लंदन होगा और पेरिस होगा। अब कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है अभी आप ये नहीं बता सकते, बट लंदन पेरिस थर्ड राउंड तक जाएगा। दैट मीन्स लंदन के जो इनिशियल फर्स्ट राउंड में नंबर ऑफ वोटर्स थे, फॉर एग्जाम्पल दिस 30, वो 30 थर्ड राउंड तक मतलब सेकेंड राउंड में भी वो 30 लोग लंदन के लिए वोट करेंगे और थर्ड राउंड में भी आपका लंदन के लिए ही वोट करेंगे। तो सेकेंड एंड थर्ड दोनों राउंड में वो 30 लोग तो कंटिन्यू होंगे ही होंगे। मे बी और लोग आ सकते हैं उन कंट्रीज़ के लिए वोट करने, सिटीज़ के लिए वोट करने के लिए, बट वो 30 को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ऑल्सो आई सी दिस पर्टिकुलर ब्लॉक वेकेंट, तो इसमें तो मैं बोल सकता हूँ ये कौन सी कंट्री होगी आपकी, बिकॉज पेरिस फर्स्ट पे है, बीजिंग लास्ट पे है, एलिमिनेट होने वाली है। दैट मीन्स द सेकेंड कंट्री इज लंदन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इस रो का टोटल सम देखूँ तो इट हैज़ टू बी 83, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ वोट्स तो आपके 83 पड़े। नाउ 32 एंड 9 इज व्हाट, दिस इज 41 के बाद आपका ये नंबर 83, 41 और 83 के बीच में डिफरेंस कितना आ गया आपका, दिस इज सॉरी this is Beijing 21, right? So Beijing 21 and 32, this is 53 और 83 के बीच में डिफरेंस कितने का आया, 30 आ गया। नाउ अगर आप नोटिस करो फर्स्ट राउंड में लंदन के लिए 30 लोगों ने वोट करा था, वो 30 तो आगे भी कंटिन्यू होंगे, तो यहाँ पे भी तो लंदन का 30 ही निकल के आया। दैट मीन्स लंदन में कोई चेंज आपका एक्चुअली में नहीं होने वाला है, ऐसा कोई और बंदा नहीं है जो एक्चुअली में लंदन के लिए वोट करेगा। सो दिस हैज़ टू बी वेरी क्लियर। नाउ the next point in this particular paragraph was 75% of those who voted for Beijing in round 1 voted for Beijing in round 2 as well. Now सबसे पहले राउंड 2 में अगर आप नोटिस करोगे बीजिंग में 9 लोग आउट ऑफ दिस 21, 9 लोग कहाँ से आए, जो न्यूयॉर्क के लिए फर्स्ट राउंड में वोट किए होंगे, तो वो 9 आपका यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। तो बचे हुए जो 21 माइनस 9 12 लोग होंगे, वो बेसिकली कौन लोग होंगे, जो कि फर्स्ट राउंड में बीजिंग के लिए एक्चुअली में वोट किए होंगे, राइट। वो 12 पूरा बीजिंग के लिए फर्स्ट राउंड में वोट करेंगे। क्लियर है, बिकॉज लंदन एंड पेरिस से बीजिंग में ट्रांसफर नहीं होना है। लंदन एंड पेरिस के लिए जो भी फर्स्ट राउंड में वोट करेगा वो लंदन एंड पेरिस के लिए ही करता रहेगा, अभी थोड़ी देर पहले समझाया, राइट। बीजिंग में सिर्फ ट्रांसफर कौन सा हो सकता है, या तो न्यूयॉर्क वाला पर्सन आ जाए या फिर खुद बीजिंग के लिए जो फर्स्ट राउंड में वोट कर रहा था वही कंटिन्यू कर जाए। तो न्यूयॉर्क से तो यहाँ पे 9 आया, तो ये बचा हुआ 12, बिकॉज 21 माइनस 9 12, वो 12 कौन होगा, जो कि फर्स्ट राउंड में बीजिंग के लिए एक्चुअली में वोट कर रहा होगा। नाउ 12 फर्स्ट राउंड में बीजिंग के लिए जो पर्सन यहाँ पे सेकेंड राउंड वोट किया है वो फर्स्ट राउंड में भी वोट कर रहे होंगे,
बट ये जो स्टेटमेंट बोलता है वो आपको ये बताएगा कि बीजिंग के लिए एक्चुअली फर्स्ट राउंड में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे कितने, बिकॉज इट इज सेइंग 75% ऑफ दोज हु वोटेड फॉर बीजिंग इन राउंड वन. 75% इज व्हाट, 3/4. 3/4 of the people who voted for Beijing in round one, they voted for Beijing in round two as well. तो वो नंबर हमारे लिए कितना था, 12 था. तो 3/4 of something is actually 12. तो ये कितना आ जाएगा, 16. So this has to be 16. तो हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट राउंड में बीजिंग के लिए कितने लोगों ने वोट करा था, 16 लोगों ने वोट करा था. तो इस 16 में से 12 लोग सेकेंड राउंड में बीजिंग के लिए वोट कर रहे हैं, दैट इज 75%. नाउ तुरंत से आपको ये भी समझ में आएगा, एक्चुअली में न्यूयॉर्क के लिए देखो तो न्यूयॉर्क में आपका बचा हुआ यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 16 में से 12 आया है, राइट. तो 12 आपका बीजिंग में आया, राइट. दैट मीन्स बचा हुआ 16 माइनस 12 जो होगा, दैट इज दिस 4. वो 4 कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ होगा. अब वो 4 कहाँ पे शिफ्ट होगा, लंदन का भी अब ऑलरेडी नोटिस कि नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो लंदन में कोई बाहर से आएगा नहीं. तो एक्चुअली में ये जो बीजिंग का 4 है, वो बीजिंग का 4 कहाँ जा रहा होगा आपका, वो जा रहा होगा आपका पेरिस में, राइट. सो आउट ऑफ दिस 32 हमें पता है कि 4 आपका एक्चुअली में यहाँ पे बीजिंग से आएगा, राइट. सो बीजिंग का आपका पूरा एडजस्ट हो गया कि आउट ऑफ द 16 4 आपका पेरिस में चला जाएगा और बचा हुआ 12 आपका बीजिंग में कंटिन्यू करेगा. नाउ ऑल्सो इसी तरीके से अगर आप नोटिस करोगे इस न्यूयॉर्क में ये 12 में से 9 तो आपका सेकेंड राउंड में बीजिंग के लिए वोट किए, तो बचे हुए 3 कहाँ पे वोट करेंगे, अगेन सेम लॉजिक से लंदन के लिए वोट नहीं कर सकते बिकॉज लंदन में नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो लंदन में कोई और वोटर नहीं आया होगा. तो ये जो बचे हुए 3 होंगे वो कहाँ गए होंगे, वो किसी और सिटी के लिए वोटिंग करेंगे. तो कौन सी सिटी ऑप्शन में बची, दिस पेरिस. तो ये आपका पेरिस के लिए वोट कर रहे होंगे. तो 3 + 4 ये आपका 7 ऑलरेडी बन चुका है. नाउ अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे नंबर निकाल लेते हैं. यहाँ पे अगर मैं नंबर निकालने पे जाऊँ तो 82 में से ऑलरेडी कितना लिखा हुआ है आपके पास, 16 + 12. 16 + 12 इज 28. 30 + 28 इज 58. नाउ 58 और 82 का अगर आप डिफरेंस देखो, दिस बिकम्स व्हाट, 24. तो 24 आपका ये जो रिमेनिंग कंट्री है या सिटी है वो वोट कर रहा होगा. तो दैट मीन्स यहाँ पे पेरिस का नंबर ऑफ वोट्स इन द फर्स्ट राउंड वुड बी 24. अब हम क्या करते हैं, पेरिस का नंबर देखना स्टार्ट करते हैं बिकॉज पेरिस का नंबर काफ़ी चेंज होता दिख रहा है. फर्स्ट राउंड में 24 था, वो 24 लोग तो आपका सेकेंड राउंड में भी पेरिस के लिए वोट कर रहे होंगे, तो 24 तो आना ही था. ये 24 यहाँ कंटिन्यू हुआ, न्यूयॉर्क का 3 यहाँ पे आया और बीजिंग का 4 भी यहाँ पे आया. लेकिन अगर आप करेंट टोटल्स का देखोगे तो 24 + 4 28, 28 + 3 बिकम्स 31. लेकिन होना तो ये 32 चाहिए. तो ये एक्स्ट्रा 1% कौन आया, राइट. अगर आप थोड़ा सा सोचोगे आपको समझ में आएगा वो एक्स्ट्रा पर्सन कौन हो सकता है, जो फर्स्ट राउंड में न्यूयॉर्क का खुद रिप्रेजेंटेटिव रहा होगा, राइट. जो वो एक पर्सन न्यूयॉर्क का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो सेकेंड राउंड में तो किसी के लिए वोट करेगा. तो लंदन का नंबर चेंज होना नहीं है, 30 का 30 होना है, राइट. बीजिंग का नंबर हमने एडजस्ट कर लिया है, सिर्फ इस पेरिस में 32 में से 31 तक अभी आपने एडजस्ट किया हुआ है. तो जो बचा हुआ 1 है वो एक्चुअली न्यूयॉर्क का क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव, राइट. उस रिप्रेजेंटेटिव ने एक्चुअली में सेकेंड राउंड में पेरिस के लिए वोट करा होगा. नाउ आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका. नाउ दोज हु वोटेड फॉर न्यूयॉर्क इन राउंड 1, दोज हु वोटेड फॉर न्यूयॉर्क इन राउंड 1 वोटेड फॉर आइदर बीजिंग और पेरिस इन राउंड 2. तो न्यूयॉर्क में जो फर्स्ट राउंड में वोट करा होगा, सेकेंड राउंड में या तो बीजिंग के लिए वोट करा होगा या तो पेरिस के लिए वोट करा होगा. नाउ ये हम लॉजिकली भी इन्फर कर सकते थे बिकॉज लंदन का नंबर चेंज हो नहीं रहा है. दैट मीन्स ऑटोमेटिकली न्यूयॉर्क के जो पर्सन है, दैट इज दीज 12 पीपल, वो ऑटोमेटिकली आपका सेकेंड राउंड में पेरिस और बीजिंग के लिए वोट करेंगे. सो इस स्टेटमेंट का बहुत ज़्यादा एक्चुअली में कोई यूज़ नहीं है, ये नहीं भी देते तब भी अपना काम चलता. Second point, the difference in votes cast for the two contending cities in the last round was 1. Now, last round आपका total number of votes कितने पड़े, 75. और 75 इन दोनों का सम होना चाहिए. इन दोनों का सम 75 है, लेकिन उनका डिफरेंस भी आपको कितना बोल रखा है, 1. तो बहुत क्लोज तोड़ना है, तो 75 को 2 नंबर में तोड़ो ऐसा कि आपका 1 का डिफरेंस आए. तो आप बोलोगे एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज 38 and 37.
अब 38 37 किसका होगा वो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा। पेरिस एंड लंदन का है, बट किसका 38 और किसका 37 है वी डोंट नो एज ऑफ नाउ, उसको थोड़ा हम लॉजिकली इन्फर करेंगे। बट द नंबर्स हैव टू बी 38 एंड 37, तभी 1 का डिफरेंस आएगा और सम 75 आएगा। नाउ द फाइनल स्टेटमेंट, इसी के बेस पर अब सब कुछ निकल जाना चाहिए। फाइनल स्टेटमेंट, 50% ऑफ दोज हु वोटेड फॉर बीजिंग इन राउंड 1, तो 50% ऑफ दोज हु वोटेड फॉर बीजिंग इन राउंड 1, तो बीजिंग इन राउंड 1 16 लोगों ने वोट करा, इसका 50%, 16 का 50% इज हाफ, दैट इज 8 वोटेड फॉर पेरिस इन राउंड 3। तो अब यहाँ पे नोटिस करो, पेरिस का ऑलरेडी क्या है 32 आपका वोट्स है सेकेंड राउंड में, राइट, जिसमें कॉम्पोजिशन आपको पता है 1 3 4 एंड 24, बट इसमें आपको ये 4 का ध्यान रखना पड़ेगा, ये 4 आपका बीजिंग से ही आया था, राइट, सेकेंड राउंड में आपका बीजिंग से ट्रांसफर हुआ था यहाँ पे 4। अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि थर्ड राउंड में पेरिस में, राइट, पेरिस में 50% ऑफ बीजिंग फर्स्ट राउंड वाले आएंगे, तो 16 का 15% क्या बोला हमने, 50% आधा, दैट इज 8, तो बीजिंग के 4 लोग ऑलरेडी आपके पेरिस में शिफ्ट हो चुके हैं, राइट, जिससे ही 32 बना है। वो बोल रहा है कि 8 लोग टोटल पेरिस के लिए यहाँ पे वोट करेंगे थर्ड राउंड में, वो जो भी है 38 या 37, दैट मीन्स एक्स्ट्रा 4 लोग आपका बीजिंग से यहाँ पे पेरिस में और आएंगे। तो पेरिस का अगर आप नोटिस करो, उसको अलग से लिखते हैं, पेरिस का आपका 32 वोट्स ऑलरेडी पड़ रखा है, राइट, इसमें कह रहा है कि बीजिंग से यहाँ पे 8 लोग आएंगे, तो 4 लोग तो ऑलरेडी कंटिन्यू कर चुके थे, राइट, तो अब इस 24 में जो टोटल है आपका, तो 24 तो आएगा ही आएगा, इसमें 4 + 4 टोटल 8 आ जाएगा आपका, राइट, बीजिंग का आधा आ जाएगा यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे 8 लोग आ गए। इसके बाद ये 3 लोग आपके न्यूयॉर्क से यहाँ पे वोटिंग कर रहे थे। अब इसको में भी हमें फिगर आउट करना पड़ेगा क्या ये 3 लोग अभी भी पेरिस के लिए वोट कर रहे हैं या फिर इसमें से कुछ शिफ्ट हो गए। इसको कैसे फिगर आउट कर सकते हो, अगर आप नोटिस करो, इसमें हमने ये बोला कि बीजिंग का टोटल 16 में से, बीजिंग का 16 में से 12 लोग आपके यहाँ पे पहुँचे, 4 लोग आपके जो डिफरेंस है 16 एंड 12 का, जो 4 का डिफरेंस है वो पेरिस में सेकेंड राउंड में चले गए, राइट, इस 12 में से भी 4 लोग और आएंगे, राइट, पेरिस में 4 लोग आ रहे हैं क्योंकि पेरिस में टोटल 8 लोग आने हैं बीजिंग से जो कि फर्स्ट राउंड में वोट कर रहे थे, तो 4 का और ट्रांसफ़र होगा, दैट मीन्स 12 में से 4 हटाने के बाद जो आपके 8 लोग बचे हैं, वो 8 लोग पेरिस को छोड़ के किसको वोट कर रहे होंगे, लंदन को वोट कर रहे होंगे, राइट, लंदन के लिए वो आपका एक्स्ट्रा 8 ऐड होना चाहिए, इस 12 में से 4 और जाएगा आपका पेरिस में, तो जो बचा हुआ आपका 8 है वो 8 आपका लंदन में ऐड होना चाहिए। नाउ लंदन में अगर आप नोटिस करो, सेकेंड राउंड में नंबर ऑफ वोटर्स 30 है, वो वही वोटर्स है जो फर्स्ट राउंड में थे, राइट, कोई नंबर चेंज नहीं हुआ था। नाउ थर्ड राउंड में ये 30 तो रहे ही होंगे, और हम ये कह रहे हैं कि बीजिंग से 8 लोग और आएंगे, दैट मीन्स लंदन का नंबर कितना होना चाहिए, 38 ही होना चाहिए, नीचे जा नहीं सकता, बिकॉज 8 इसमें ऐड होना है, दैट इज कंफर्म, दैट मीन्स यहाँ पे लंदन वुड बी द फर्स्ट प्लेस, वुड बी द फर्स्ट प्लेस, एंड जो दूसरी कंट्री है पेरिस, दिस हैज़ टू बी 37। नाउ अब हमें यहाँ पे एक्चुअली में क्लियर होना चाहिए कि ये जो पेरिस का हम नंबर फॉर्म कर रहे थे, दैट इज 32, इस 1 3 4 24 में से इनमें से कोई भी पर्सन लंदन में ट्रांसफ़र नहीं होगा सेकेंड से थर्ड राउंड में, राइट, जो भी ये पर्सन है वो अभी भी पेरिस में कंटिन्यू करेंगे। तो इफ़ आई डायरेक्टली से कि पेरिस में 24, ये 4 और प्लस बीजिंग का जो एक्स्ट्रा 4 आना था दैट इज़ 8, राइट, पूरा ये अब 8 आपका इसका डायरेक्टली 50% हो गया, ये 3 + 1, 3 + 1, ये अगर आप नंबर नोटिस करोगे तो करेंटली कितना बन गया, 24 + 8 32, 32 + 4 36, अगेन 36 बन रहा है ये, बट आपको तो क्या चाहिए, पेरिस का 37 चाहिए, दैट मीन्स एक और अभी भी मिसिंग आपका पर्सन है। अगेन द सेम लॉजिक कंटिन्यूस, वो मिसिंग पर्सन कौन हो सकता है, लंदन का आपका पूरा सेटिस्फाई हो चुका है 38, वो मिसिंग पर्सन जो भी होगा वो कहाँ से आएगा, जो कि सेकेंड राउंड में एक्चुअली में बीजिंग का कंटेंडर होगा, तो बीजिंग का जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बिकॉज बीजिंग भी एलिमिनेट हो गया, तो अब वो थर्ड राउंड में एलिजिबल हो जाएगा, वो किसके लिए वोट करेगा, पेरिस के लिए वोट करेगा, इसीलिए यहाँ पे वो एक्स्ट्रा 1% इन्वॉल्व होते ही
यहाँ पे वो पर्सन इन्वॉल्व होते ही क्या हो जाएगा आपका, ये 36 से 37 एंड पेरिस का नंबर भी सेटिस्फाइड हो गया, राइट. सो दिस इज ऑल टू दिस पर्टिकुलर सेट. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेट है, मे बी विल हैव टू डू दिस अगेन, बट हाँ ये नंबर तोड़ते जाना है. विल हैव टू बी वेरी केयरफुल समटाइम्स वो नंबर आपका कैसे कैसे कंपोज हो रहा है. नाउ लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम्स. सो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ मेंबर्स फ्रॉम अमंग दोज हु वोटेड फॉर न्यूयॉर्क इन राउंड 1. तो न्यूयॉर्क इन राउंड 1 दैट इज 12, डिनोमिनेटर में 12 आ गया. वोटेड फॉर बीजिंग इन राउंड 2, इस 12 में से राउंड 2 बीजिंग के लिए कितने लोगों ने वोट करा था, तो यही 9 लोग ट्रांसफर हुए थे, दैट इज 9/12. 9/12 इज 3/4, 3/4 इज 75%. So in percentage this is 75. Now next problem, second question, what is the number of votes cast for Paris in round 1. तो Paris in round 1 ये हमने फिगर आउट कर लिया था, this was 24. Third problem, what percentage of the members from among those who voted for Beijing in round 2. तो Beijing in round 2 फिलहाल ये 21 members and were eligible to vote in round 3. तो अब टोटल आपका जो डिनोमिनेटर है वो एक्चुअली कौन सा है, जो कि बीजिंग इन राउंड 2 में वोट भी किए और थर्ड राउंड में वोट करने के लिए एलिजिबल भी हैं. तो वो कौन लोग हैं एक्चुअली, वो ये 12 लोग हैं, क्योंकि 9 फिर इनएलिजिबल हो जाएगा. तो ये 12 आपका डिनोमिनेटर में जाएगा. और पूछा क्या है, एंड राउंड वोटेड फॉर लंदन, तो न्यूमरेटर में क्या जाएगा, इन 12 में से कितने लोगों ने लंदन के लिए एक्चुअली में वोट करा था. तो लंदन में कितना ट्रांसफर हुआ था इस 12 में से, इसमें से 8 ट्रांसफर हुआ था, क्योंकि बचा हुआ 4 आपका पेरिस में गया था. तो 8 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 2/3 एंड दिस 2/3 बिकम 66.66%. ये आर राउंडेड ऑफ टू 66.67, दैट इज डी ऑप्शन. Now the final problem, which of the following statements must be true. So this is IOC member, so member का जो ट्रांसफर हो रहा है, IOC member from New York must have voted for Paris in round 2. So New York वाला जो रिप्रेजेंटेटिव था, जो मेंबर था, वो कह रहा है he must have voted for Paris in round 2. Paris in round 2 क्या सही है, yes, वो मेंबर जो था वो ऑटोमेटिकली पेरिस में वोट कर रहा था, लंदन में वोट नहीं कर रहा था, वो पेरिस में. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रू. लेट्स चेक फॉर द सेकंड स्टेटमेंट. IOC member from Beijing voted for London in round 3. No. लंदन में वो मेंबर अगेन ट्रांसफ़र नहीं हुआ था. वो मेंबर जो आपका बीजिंग वाला सेकेंड राउंड में था, जो एलिमिनेट हुआ, वो पर्सन एक्चुअली में थर्ड राउंड में अगेन पेरिस के लिए ही वोट कर रहा था, राइट. इन दोनों ही केसेस में जो रिप्रेजेंटेटिव आपके एलिमिनेट हुए थे, उनकी सिटीज़ एलिमिनेट हुई थी, वो दोनों ही आपके राउंड्स में पेरिस के लिए उन्होंने वोट करा. हेंस द सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. सो ओनली 1 is the correct answer to this particular problem, right. I hope you have understood this set. If you have any doubts related to the set, you can just put that in the comments and I will resolve your queries. Thank you.